देण्यासाठी कोणीच अवेलेबल नव्हतं. म्हणून काय झालं, टुरिझममध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी खूप जास्त अपॉर्च्युनिटी झाले. आणि हे चारी पण इंडस्ट्रीजला कुठेही मशिनरी वगैरे काही लागत नाही, तिथे ह्युमनच लागतात. म्हणून इथे कधीही मंदी येत नाही किंवा इथे कधीही रिप्लेसमेंट नसतो. तुम्हाला तुमचे स्किल्स जे आहेत ते ग्रो करायचे आणि इथं तुम्हाला तशा पद्धतीने वर्क करायचं, राईट. तर फ्रँकलिन तुम्हाला या चारीसाठी हेल्प आउट करतं. ओके, मी आता तुम्हाला एक व्हिडिओ कंटेंट दाखवेन, ते पाहून घ्या. मग मी तुम्हाला पुन्हा एक्सप्लेन करतो आणखी डिटेलमध्ये. Ma'am, may I take the seat? Yes, please, sure. Thank you, ma'am. You're welcome. I really like what you do, ma'am. Thank you so much. Ma'am, मुझे भी आपकी तरह लाइफ जीनी है. And what do you think my life is like? It's like a dream, ma'am. पूरी दुनिया घूमना, 5-star hotels में stay करना, नए नए लोगों से मिलना, being independent, just living a good life. Well, you're surely in the right direction. But there's a little more to it. जैसे कि making your family proud. हर बार 300 से ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी. And making sure their journey is safe and comfortable. मुझे भी यही करना है, मैम. But आप तो एक अच्छे स्टूडेंट होगे ना? मैं तो मुश्किल से पास हो जाती हूँ. अच्छे का तो पता नहीं. But yes, I was smart. I took the right decisions in my life and at the right time. और मैंने अपने रिपोर्ट कार्ड को अपना फ्यूचर नहीं डिसाइड करने दिया. मैंने खुद किया है. मेरा भी यही सपना है, मैम. और ऐसे सपने को पूरा करने के लिए all you need is right guidance and a mentor. But मैम, मैं तो एक छोटे से शहर से हूँ, दुर्गापुर. हमें तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं. मैं मोगा से हूँ. नाम ही नहीं सुना होगा. Anyway, what are your plans for tomorrow? फिलहाल तो कुछ नहीं. All right. So tomorrow I will take you to this place which made me who I am today. Sure, ma'am. Frankfurt. I've heard about it, लेकिन ज़्यादा नहीं जानती. Come. Hi, Rita. Hi. How are you? Very well. Meet my friend, Veena. She wants to know something about us. दिल्ली मुंबई तो ठीक है, लेकिन क्या आपका इंस्टीट्यूट हमारे शहर में भी है? Ma'am, we are world's #1 air hostess training institute with more than 50 centers all across India and also present in Dubai. And of course, now we have one in Durgapur as well. Chalo, let me show you something. इतने सारे अवार्ड्स. Of course. When you're the best, the world recognizes it. Like Franklin has been winning the Best Air Hostess Training Institute Award from ASSOCHAM every year since 2011. Come, have a look at this. The New York Times, first page. Financial Times, London. यहाँ तक कि BBC में भी इनके सक्सेस स्टोरीज की बात हो रही है. फ्रैंकलिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है यहाँ की फैकल्टी और उनके ट्रेनर्स who have over 4,000 years of combined teaching experience. इतना कैसे? बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में फर्क होता है. They are seasoned professionals who have been in senior positions in the airline, travel और hospitality industries. तो इनका real time experience and knowledge is invaluable. बुक से समय से पढ़ते. चलो, let's make some new friends. Hi
Hi guys. How's it going? Why don't you all share some of your experiences with her? Yeah, earlier I was a true introvert, पर यहाँ आके मुझे वो confidence मिला to realize my true potential. एंड यू नो व्हाट, यहाँ सीखने में भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ क्लासेस प्रैक्टिकल सब बहुत ही इंटरैक्टिव है, अनलाइक द यूजुअल कॉलेज. और यहाँ पर हमें स्विमिंग भी सिखाई जाती है क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइन के कैबिन क्रू बनने के लिए स्विमिंग आना ज़रूरी है. अरे वो सब छोड़ो, यहाँ आने के बाद मेरे पापा को पता चला कि इंजीनियरिंग और एमबीए के अलावा भी एक और नई दुनिया है. और शायद ज्यादा पैसा भी. Guess what's the highest starting package for a Frankfurtian win? No idea. अच्छा ही होगा. 1,75,000 a month. Can you imagine that? And with experience, it only gets better. How do you think I formed my lifestyle? और मैं अपने छोटे भाई की एजुकेशन को भी सपोर्ट कर रही हूँ. Well guys, do you want to meet your seniors? Sure. All right. I was pursuing chemical engineering from Bangalore, which never really interested me. I thought there was a world beyond it. I come from a middle class family in Ghaziabad. In fact, my father is a farmer. It was very early on in life that I already understood that I had a calling for aviation industry, My lifelong goal was to work with travel industry, but I didn't know how to start. and that is exactly where Franklin Institute came into picture. At Franklin, I got the knowledge how to have a successful career with aviation industry. Why did I join aviation? To earn good money and have a good life. Franklin not only gave me the confidence, it also taught me the softwares like Amadeus and Galileo, which are the backbone of travel industry. Before joining Franklin, I was an introvert, but Franklin changed my personality completely. Currently, I'm working with Qatar Airways, which is one of the best airlines in the world. Before joining Qatar Airways, I was working with Emirates as well as a ground staff. बचपन में जब मैं मूवी देखता था, सोचता था एक दिन बड़े बड़े स्टार्स से मिलूं, और आज बड़े बड़े स्टार्स, क्रिकेटर्स, इन सबको तो डेली देखता हूँ. Thanks to my hospitality training at Franklin, I actually work for a 5-star international hotel chain. The luxurious life that I have spent these many years, I would rather give all the credit to Franklin. I feel I was really blessed to get selected as a cabin crew member for Jet Airways for international flights the very same month that I was awarded my Franklin diploma. I got my first job at SpiceJet through Franklin Placement Cell. I landed not just one, but 3 jobs within a span of 2 months. Eventually, I chose Qatar Airways that paid me 2,40,000 rupees a month. As the international cabin crew, I earned 2,88,000 per month. Franklin actually gets your industry ready. I'm just 20 years old. I'm earning more than 2 lakhs per month. I've visited more than 10 countries in the world. Don't you want a life like me? So now when I look back, I think I made a right decision by joining Franklin. Today, I'm having a successful career in travel industry, and I'm thankful to Franklin for that. My dream has come true thanks to Franklin. I would like to thank Franklin for everything. So today I would like to thank Franklin for my training. Now I actually work for an international hotel chain. I would like to thank Franklin for this beautiful lifestyle. Thanks, Franklin, for introducing me to this life. When it comes to your career choices, do not compromise. Go with the best. Go with Franklin. क्या फ्रैंकलिन सिर्फ एयरलाइंस को My dear Hina, the curriculum at Franklin trains you to be a well-rounded professional in the service industry. तो सिर्फ airlines ही नहीं, you can join the hospitality, travel, or even the customer service industries. There are many proud Franklinians at senior positions in all of these industries. पर एक एयरक्राफ्ट में काम करना तो काफी मुश्किल होता होगा ना, तो कोई एक क्लासरूम में बैठे बैठे कैसे सीख सकता है? That's true. Come, let me take you to 30,000 feet. Some of our classes happened in real aircraft flying at 800 kilometers per hour. Air India is our partner who familiarizes all the students with all procedures in a real aircraft. ये तो काफी टफ लगता है. मुझे तो लगा इट्स ऑल अबाउट ग्लैमर. किसने कहा ग्लैमर नहीं है? Being an air hostess or a steward is a combination of right attitude, personality, leadership, and communication skills. And over here, you are trained to be a well-groomed individual in every way. Do you want to see how people get transformed here? Look at this. This is Alka from Rohtak. Before Franklin and after.
Hi, ma'am. Hi. She's from Franklin's dedicated placement assistance cell. It helps the students to get placed with the best airlines. सिर्फ यही नहीं, hospitality और travel industries में भी more than 3,000 campus and exclusive interviews were conducted last year across all centers of Frankfurt. तो क्या फ्रैंकफर्ट जॉब गारंटी देता है? नो, बहुत से छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं जो जॉब गारंटी के नाम पर गुमराह करते हैं बच्चों को, लेकिन फ्रैंकफर्ट की ट्रेनिंग और जॉब असिस्टेंस इतनी बढ़िया है कि बेस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स फ्रैंकफर्ट के हैं। इनफैक्ट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में फ्रैंकफर्ट का नाम दर्ज है बेस्ट कैबिन क्रू प्लेसमेंट के लिए। And that's why Frankfurt's division, Frankfurt Management Consultants, has been the preferred recruitment associate for some of the best airlines in the world. Emirates, Oman Air, Malaysia Airlines, and some of the domestic carriers like Indigo and Jet Airways. तभी I remember the record 1,75,000. Exactly. और मैं चाहती हूँ कि तुम ये रिकॉर्ड ब्रेक करो। और हाँ, you get trained in leading computerized reservation systems like Amadeus and Fidelio. You also get a certificate in Amadeus after completing the training module. Yeah? All Frankfurt courses are accredited by ICM UK. It is also a training partner for the National Skill Development Corporation. Course पूरा होने के बाद, you will get a certificate from Sector Skill Council. Frankfurt is the world's #1 air hostess training institute. इसको तुम किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और बात जब करियर की हो, तो चांस कौन लेगा? You're a smart girl, trust me. Just go with the best. But मैम, इस अमेजिंग इंस्टीट्यूशन के पीछे कौन है? There are thousands of dedicated and able teachers, trainers, and staff across India working their best to provide the Indian youth an alternative and high career paying option. In your success, they see their own. But behind this is a vision of one man. But ma'am, who? Come. Hello, sir. Aparna. Oh, hi, Aparna. Welcome back. Good to hear that you are doing so well. Rather, I should thank you, sir. Frankfurt was my stepping stone to wherever I am today. By the way, sir, this is my friend Hina, and she also has a similar dream. ये भी उड़ना चाहती है. This is Mr. K.S. Kohli, a Supreme Court advocate by profession and a true flyer by passion. Good evening, sir. Good evening. Have a great day. Thank you so much. Thank you, sir. Hi, sir. How are you? Aparna. Yes, Aparna. Hi, how are you? Very well, sir. Doing really great. I'm so happy to see you, and there couldn't have been a better time to meet you. This is my friend Hina, and I was just wondering if you have a few moments and you can help her by explaining why this is an excellent time to join this sector. Yeah, sure. So right now, the sky has no limits. बहुत जल्दी इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एविएशन इंडस्ट्री बनने वाली है. 200 new airports are to open, and many more airlines are being issued new licenses. इससे लाखों jobs generate होंगी. There has never been a better time than now. Through Udan, the government is helping everyone to fly. Jobs in India's travel and tourism sector will reach more than 46 million in the coming years. Also, the hospitality sector is growing at a very fast pace and is expected to create more than 1 million jobs. अब इंडिया के यूथ के पास ग्रेट करियर ऑप्शन और डायरेक्शन है. फ्रैंकफर्ट में हमारी यही कोशिश है कि जो क्वालिफाइड बट अनएम्प्लॉयड यूथ का बड़ा सेक्शन है हमारे देश में, उनको बेस्ट जॉब्स दिलाई जा सके. सो रीड मोर अबाउट दैट इन दिस द एविएशन टाइम्स, द ओनली monthly aviation magazine in India that keeps you up to date with the latest trends and developments in the aviation industry. This is what we publish for our students to learn more. Thank you, sir. अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है. That's great. We'll be happy to have you here. I'm sorry, it's time for my next class. So, Miss Hina, how was your day? अब मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ. तो चलें? So friends, welcome to the good life, welcome to the sky, welcome to Frankfurt.
आ जाइए। ओके सो गाइस, कैसा लगा आपको ये? आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा लगा था। इंस्पायर होने के लिए बताया गया है, तो आप लोग थोड़ा इंस्पायर हुए क्या? हाँ। सो सबसे पहले माय नेम इज प्रियंका गुप्ता एंड आई एम हियर एज अ DMCA डेप्यूटी मैनेजर। ओके, ठीक है। तो आपसे मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोग को उसका आंसर करना होगा। गॉट इट? अभी आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे 2 लड़कियां थी ना, जो कि एक डिक्टेट कर रही थी प्रॉपर तरीके से पूरे फ्रैंकलिन के बारे में। तो आप मुझे उसमें से, आप चारों में से कोई उसका नाम बता सकता है? क्या नाम है? करेक्ट। एंड जो लड़की को डिटेक्ट करती है उसका, हाँ करेक्ट। ध्यान से सुना है, यानी ध्यान से देखा आप लोगों ने, जस्ट ये जानने के लिए कि आप लोग बस देख रहे थे कि आप उसको समझ भी रहे थे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मैं आपको ब्रीफ करूंगी अबाउट फ्रैंकलिन, आपको अपॉर्चुनिटीज क्या है यहाँ पे, आपको किस किस एरिया में आपके लिए डेवलप स्किल्स आप अपना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट? तो सबसे पहले आपने अगर देखा होगा तो यहाँ पे अपर्णा जो बताती है और वो कॉलेज में जब उसको लेके जाती है तो वहाँ पे देखा होगा उन्होंने 4 इंडस्ट्री के बारे में बताया है। वो 4 इंडस्ट्री कौन कौन सी है, कोई बता सकता है? Correct. Aviation is the first. Second, travel. Correct. Hospitality. Correct. And the fourth one? Yeah, customer care management. Okay. So इन चारों के बारे में आपको मैं ब्रीफ करती हूँ। सबसे पहले फ्रैंकलिन इज द नंबर 1 एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग सेंटर, जो कि सबसे ज्यादा कैंपस सिलेक्शन आप देख सकते हो। बाहर निकलोगे तो देखना, यहाँ पे हमारा लिम्का बुक रिकॉर्ड में नाम है, ठीक है। एसोचैम में भी हमारा नाम है यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंपस सिलेक्शन के लिए, बिकॉज मतलब पर ईयर हम लोग के यहाँ से सबसे अच्छे यहाँ से कैंपस सिलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये नंबर 1 और 30 ईयर से यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसकी वजह से है। नाउ व्हाट इज द कोर्सेज हियर? यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले आप यहाँ से जैसे निकलते हो हम आपकी हाइट वेट चेक करते हैं, ठीक है। फिर आप काउंसलिंग के लिए बैठते हो तो हम लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन हो गया, आपके कोई बॉडी में स्कार्स नहीं है इसके बारे में, आपको कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये सब के बारे में प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। वाई सो? बिकॉज एविएशन सेक्टर में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एविएशन सेक्टर में जा रहे हो तो आपके लिए ये सारी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़कों के लिए जो हाइट होती है वो 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए एंड 8 एज पर द BMI, ओके। एंड लड़कियों के लिए होती है 157, मतलब 10 सेंटीमीटर का कोई डिफरेंस होता है। तो इतनी हाइट अप्रॉक्सीमेटली होनी चाहिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट होते हो, क्योंकि इनके भी क्राइटेरिया है। अगर आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे तो डेफिनेटली आपको हॉस्पिटैलिटी, कस्टमर सर्विसेज एंड अनदर आपका जो तीसरा रहता है पॉइंट्स आपका टूरिज्म, इसके बारे में करते हो। बट एविएशन में सिर्फ और सिर्फ आपको हाइट के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एविएशन में दूसरा चीज भी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि आपका अपना ये ग्राउंड स्टाफ जॉब होता है वो आप भले कर सकते हो, बट हाँ फ्लाइट में नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप बैठे हो तो आपको कुछ फील हो रहा, लग रहा है फ्लाइट में बैठे हैं? हाँ बिल्कुल लग रहा है ना। यहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग होती है इसी एरिया में, ताकि आप जब यहाँ पे ट्रेन होगे तभी तो जाओगे। ये आपका एक प्रैक्टिकल तरीके का ट्रेनिंग है। आप जैसे एयरलाइंस में जाते हो तभी तो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे ना। तो हम लोग आपको इस तरीके से ट्रेन करते हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इंटरव्यू पार्ट से लेकर आप जॉब तब तक नहीं मिलती, उन सभी के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेन किया जाता है। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि मैं बार बार जॉब के बारे में बात कर रही हूँ, करेक्ट? क्योंकि स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं किस लिए? मार्क्स के लिए। यहाँ पे जो ट्रेनिंग होगी वो किसके लिए होगी? सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए होगी। तो हमारा मेन पर्पस क्या है? हमें आफ्टर 11 मंथ जॉब मिल जाए, क्योंकि हमको उतना ही हार्ड वर्क करना है। नाउ वी हैव 2 कोर्सेज। वन कोर्सेज इज लाइक द फ्रैंकलिन डिप्लोमा एविएशन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें आपका मैंने जो क्राइटेरिया बताया अगर वो मैच करता है आपको ये 11 मंथ्स का करना पड़ता है। दूसरा आपका होता है एविएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी ट्रैवल एंड कस्टमर सर्विसेज, जिसका हाइट का थोड़ा इश्यू होता है। स्टिल उनके लिए भी जॉब होती है, ऐसी बात नहीं है, बट उनके लिए दूसरा वाला कोर्स होता है। ये दोनों कोर्स आपका 11 मंथ्स का होता है और आपको पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे 2 आवर्स का टाइम देना पड़ता है। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज इज अबाउट समथिंग की जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है समथिंग।
We have also tie up with ICM. What is the ICM? In future, if you want to go in the abroad, so yeah, you can just show this certificate. So you can, मतलब आपको वहाँ पे भी job के लिए easybility होती है, ठीक है? Now the second is NSDC. What is NSDC? यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, National Skill Development Corporation. ये आपका full form होता है यहाँ का. It means कि हमारा tie up जो है हमारा इनके साथ भी है. That means ट्रांसफॉर्मिंग द स्किल लैंडस्केप, मतलब लैंडस्केप आपका ये प्रॉपर तरीके से है. अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो तो सबसे पहले ये जान लो, ग्लैमर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको प्रॉपर तरीके से अपेयरिंग के लिए, यानी कि आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका द वे ऑफ टॉकिंग, आपके हाथ, एक होता है ना गेस्चर, आप कैसे करते हो, वॉइस मॉड्यूलेशन, यानी कि आपको किस जगह पे किस तरीके से बात करना है, एंड अगेन आपका प्रॉपर तरीके से द इंग्लिश स्पीकिंग, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. ये पार्ट्स आपको सारे यहाँ पे सिखाए जाते हैं, आपको ट्रेन किया जाता है यहाँ पे. दैट्स व्हाई वी आर, हम लोग इसको 11 मंथ्स का ट्रेनिंग बोलते हैं. गॉट इट गाइस? कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, ठीक है. नाउ देयर इज अ गर्ल. दोनों लड़कियां सेम लग रही हैं क्या? हाँ, दोनों लड़कियां सेम है पर डिफरेंस है. डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बताएगा? क्या डिफरेंस है? नहीं, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी, बिकॉज जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी बात है. अगर आप ऐसे शर्ट पहन के, फ्लोटर्स पहन के या शूज पहन के आप लोग जाते हो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू देख के ही आपको रिजेक्ट कर देता है. बिकॉज आप कितने भी नॉलेजफुल होंगे, आप कितना भी, आपको सारी चीजों के बारे में सब कुछ पता होगा, आप मतलब एक होता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपका इंप्रेशन खराब बन चुका है, 50% ऑलरेडी आपने अपने आप को माइनस कर लिया है. स्टिल आपके पास अच्छा खासा एजुकेशन भी होगा, स्टिल आप नहीं शॉर्टलिस्ट होगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर यानी ड्रेसिंग सेंस को चेंज करना पड़ता है, हमें एक प्रोफेशनलिज्म जाना पड़ता है, सिंपल. तो यहाँ पे एक लड़की जो बैंगल्स पहन के, एक सिंपल सा बुक्स पहन के, बुक्स लेके हाथ में खड़ी है, इट्स अ कॉलेज गर्ल. इसको चेंज करना है हमें प्रोफेशनल में. तो ये होता है डिफरेंस, ये होता है ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्म करना होता है. एंड अगेन सीइंग इज बिलीव, जो दिखता है वो बिकता है, जैसे मैंने बताया आपको. तो उसके लिए हम लोग आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रेन करते हैं. ऐसा नहीं कि वो तो मैं भी कर सकता हूँ, तुमको तो लगेगा कपड़ा ही तो पहनना है, वो तो घर पे मैं भी पहन सकता हूँ, शर्ट पहन लूंगा, ये पहन लूंगा. मगर इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो आपको कैसे पता होगा? उसके लिए तो आपको लर्न करना पड़ेगा ना. आपको तो नहीं पता है ना कि एक मतलब एयर फ्लाइट में कितने सारे सीट्स होते हैं, तो उसको किस तरीके से रिजर्व करते हैं हम. अगर एक प्रॉब्लम होता है किसी को, मतलब ड्यूरिंग द ट्रैवल में किसी को प्रॉब्लम होता है अस्थमा को, तो हमें वहाँ पे क्या चीज़ करनी पड़ेगी, ये सब कौन बताएगा? इसके लिए तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ना. अब ये सोचोगे तो यूट्यूब से ही जान लेंगे, हर चीज़ यूट्यूब में होता तो ये कोर्सेज नहीं होता ना, डेफिनेटली. इसके लिए नाउ सेकेंड इज, यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जो बच्चे यहाँ पे आए थे और किस तरीके से उन्होंने इम्प्रूव किया है अपने आप को, इसके बारे में बताऊंगी. अगर आप देख रहोगे यहाँ पे एक सुप्रिया करके लड़की है. ये लड़की जब आई थी, देख के कैसी लग रही है? इसको अगर मैं भेजूंगी जॉब के लिए तो ये शॉर्टलिस्ट हो जाएगी क्या? नहीं. क्यों नहीं होगी? अपीयरेंस, कॉन्फिडेंस की भी कमी है. एक कॉन्फिडेंस, मतलब एक मेरा कॉन्फिडेंस चेक करो, मैं तुम किसी को नहीं जानती पर स्टिल बात करने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होती है. अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा करूंगी बात करने के लिए, आप थोड़ा शिवर होगे, थोड़ा सा टेंशन होगा, बात करने में आपको डर लगेगा. ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे. यही चीज आपको कराई जाती है, सिखाई जाती है. द वे ऑफ स्किल, द वे ऑफ टॉकिंग, हाउ टू टॉक टू इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स, आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट? तो ये सुप्रिया जो है जब यहाँ पे आई थी एडमिशन के लिए, शी हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंशियल इशू ऑफ कोर्स, क्योंकि फाइनेंशियल इशू को सबको होता है, इनकी फैमिली में भी था. और इनके फादर नहीं थे एक्चुअली. इनके फादर नहीं होने की वजह से इनके ऊपर बहुत प्रेशर था, मतलब पैसे कमाने के लिए. और एक होता है ना कि पैसे कमाने के लिए आपको 12th के बाद ग्रेजुएशन करना है, फिर मास्टर्स करना है, तब जाके आपको पैसे मिलते हैं. इसके पास उतना पैसा नहीं था, पर समहाउ इसने अरेंज किया फ्रैंकलिन का फी पे करने के लिए. राइट नाउ शी वर्किंग इन एयर अटलांटा. द पैकेज इज मंथली इज 1,35,000. शी अर्निंग पर मंथ, मतलब पर महीने वो 135 कमा रही है. और वो एयर अटलांटा में जॉब करती. इट्स द इंटरनेशनल एयरक्राफ्ट. ओके, सी द डिफरेंस. डिफरेंस दिख रहा है? दिख रहा है? वो जो ये लड़की थी सिंपल सी,
जॉब करने पे हमने इनके ट्रांसफॉर्म कैसे किया, किस तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रही है राइट नाउ. गॉट इट. नाउ इज अ सेकेंड गर्ल इज रजनी पवार. ये मेरी स्टूडेंट है. ये जब आई थी यहाँ पे, मैं 6 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ. हाँ, किसे कुछ बोला? हाँ, रजनी. तो यहाँ पे ये जब आई थी ना, तो सबसे पहले ये बहुत ज्यादा डरी हुई थी. मतलब एक होता ना, एक लड़कियां और एक लड़के भी कुछ कुछ होते हैं कि किसी को सामने से देखने में, बात करने में भी डरते हैं कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू के बोलूं कि नहीं बोलूं. कुछ होते हैं ना बैक बेंचर्स होते हैं जो उनको आता भी है और नहीं समझ में आया तो भी चुपचाप होके बैठे रहते हैं. पूछने में डरते हैं कि कहीं मैं बोलूंगा तो मेरा मजाक उड़ जाएगा क्या, अगर मैंने कुछ बोला तो सारी क्लास में हंसने लगेंगे क्या. ये होता है हेजिटेशन, ये होता है अंदर का फियर. ये जब तक आप कंप्लीट ना करो या अपने आप को निकालो ना, तब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते. तो राइट नाउ ये कैमरा में सामने देखने में भी डर रही थी. तो अगर फोटो देखोगे तो वो किनारे ही देख के फोटो खिंचाया. राइट नाउ शी वर्किंग इन ब्रिटिश एयरवेज. लुक एट द डिफरेंस. शी अर्निंग 1,10,000 per month. Right now she having a one home at in London because ब्रिटिश एयर में जॉब करने से आपको क्या होता है, 4 days आपका लंदन में ही रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस है. तो इनका घर भी ले लिया है यहाँ पे. दिस इज अ डिफरेंस. गॉट इट. तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से, क्योंकि लड़कियों के साथ क्या है, एज इशू होती है, शादी का इशू होता है. तो राइट नाउ क्या होता है, 24 इयर्स तक मतलब एक एज क्राइटेरिया होता है कि आप जॉब कर सकते हो. आफ्टर 24 के बाद वालों को हम नहीं लेते एविएशन सेक्टर में. ठीक है. तो एज क्राइटेरिया इन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया और अच्छा खासा अर्न कर रही है अभी. तो हमें हमारा देखो एट द एंड क्या होता है, आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो. देखिए नॉलेज तो सब लेते हैं, नॉलेज सबको मिल रहा है, पढ़ाई से मिल रहा है, मगर एट द एंड क्या पर्पस क्या है पढ़ाई करने का, पैसे कमाना. एट द एंड जॉब और आपका जो सैलरी आपके अकाउंट में कितना आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है. तो हम आपको प्रॉपर तरीके से उसके लिए ट्रेन करते हैं. अब आपको है कि आप कौन सा सेक्टर चूज करते हो, एविएशन की, हॉस्पिटैलिटी की, टूरिज्म की, कस्टमर सर्विसेज. ये 4 ब्रांचेस होते हैं. इन चारों में आपको मैं बता देती हूँ, एविएशन में आपको ऑफकोर्स जो जॉब मिलती है वो कैबिन क्रू की मिलती है. लड़के जो होते हैं वो एयर स्टू बोले जाते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो एयर हॉस्टेस बोले जाती हैं. ठीक है. एयर स्टू बोलते हैं, एयर स्टू. हाँ, तो ये बोला जाता है. ठीक है. तो वर्क सेम होता है. लड़कों का इवन ज्यादा ही लग्जरी मतलब बोल सकते होता है. पैसा बहुत अच्छा मिलता है सबसे पहली बात तो, क्योंकि यार एट दी एंड में लड़कों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. लड़कियों के पास तो ऑप्शन होता है, वो शादी करके नहीं भी काम कर सकती हैं. जिनको इंडिपेंडेंट बनना होता है वही करती है, बट लड़कों के पास ये कोई ऑप्शन नहीं होता है. लड़के घर में रोटी नहीं बेल सकते या लड़के घर में सब्जी नहीं बनाते देखे जाएंगे. उनको जॉब करना है, पैसे कमाने, घर खरीदना है, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है. वो 10,000 की जॉब करके इस जमाने में तो कुछ नहीं होता. 10,000 की जॉब करके तुम्हारे खुद के पॉकेट मनी नहीं निकल सकता. तो तुम क्या अपने घर के शादी करने के बाद बीवी का खर्चा, बच्चों का खर्चा कैसे निकालने वाले हो, या तो फिर फैमिली के भरोसे बैठो. ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, जो कि आज के जमाने में कोई लड़का नहीं करना चाहता. सब इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं. ठीक है. अभी सोच रहे हो कि मैम तब से लड़कियों का एग्जाम्पल दे रही है, लड़कियों का एग्जाम्पल दे रही है, लड़के नहीं करते क्या. तो यहाँ पे लड़का भी है, विक्रम नाम का लड़का है. ठीक है. तो विक्रम जब आए थे तो देख सकते हैं आप लोग की तरह एक फ्लोटर पहन के, मस्त बेल बॉटम जीन्स पहन के, शर्ट पहन के आए हुए थे यहाँ पे कोई एयर हॉस्टेस बनने के लिए. तो आपको लगता है मैं ऐसे भेजते विक्रम को जॉब के लिए तो ये शॉर्ट लिस्ट होते? बिल्कुल नहीं होंगे. पहली बात तो मैंने बताया, देख के भगा दिया जाएगा. फिर दूसरा होता बात करेंगे. तो अब मैं इनका एग्जाम्पल देती हूँ. सबसे पहले विक्रम नहीं यहाँ पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पे इनका दोस्त पढ़ाई कर रहा था. ठीक है. तो इनके दोस्त ने इसने मना कर रहा था इवन कि इतना पैसा लगा के क्या फायदा. मतलब 11 महीने 10 मंथ्स के बाद से इसके फ्रेंड को जॉब लग गई. किसमें? इंडिगो में. पैकेज कितना मिला? 55,000 का, बिकॉज वो डोमेस्टिक है. और स्टार्टिंग 55,000 विल बी ठीक ठाक वाला यार. ठीक है. ये कारपेंटर था. ये उस समय मतलब आके नेक्स्ट डे उसने अपना फी मतलब अपना एडमिशन फी एडमिट पैसे किया. अपना कारपेंटर वाला काम करता था, बिकॉज हमें 1 day 2 hours का ही काम मतलब पढ़ाई होती है ना. वो भी काम करके अपना फीस कैसे भी अरेंज किया इसने 11 मंथ्स में. राइट नाउ ही इज वर्किंग इन मतलब जब कैंपस सिलेक्शन हुआ था 2019 में जेट एयरवेज में हुआ था इनका, और अभी कोई इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम कर रहे हैं, कतर एयरवेज में. अच्छा खासा पैकेज मिला हुआ इनको. कारपेंटर से अभी कहाँ पहुंच गया, जस्ट बिकॉज इसकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, हाइट अच्छी थी, सब कुछ था. उसको समझ में आ गया कि मेरे लिए ये नहीं ये बना हुआ है. यहाँ पे तुम्हें सब कुछ सिखाया ही जा रहा है, तो हम जहाँ पे 15,000 क्यों कमाए अगर हम इसको
बोलते हैं ना, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक्स में करते हैं अलग जगह पे, ये भी इन्वेस्टमेंट होती है पढ़ाई आपकी और आपका पैसा। यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तब जाके आगे आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिलता है पैसा। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे, और ऑफकोर्स आपको 60-70 हज़ार रुपये का स्टार्टिंग मिलता है, तो ये डे बाई डे आपका बढ़ता है, ऐसा नहीं कि वो कम होते जाता, पीछे होते जाता है। तो आपको ये चूज़ करना होगा। तो विक्रम आज अच्छी जगह पे है। अब आती है लास्ट, चारुशीला कड़ू करके एक बच्ची है भाई, इनके साथ तो मतलब ये इवन मेरे को लगता है तुम सभी भी फेस कर रहे हो, मैंने भी फेस किया था अपने टाइम पे, ठीक है। तो इनके साथ क्या हुआ था, ये जैसे 12th पास आउट की तो चाचा, मामा, भैया, दीदी सभी लोग ये कर लो, ये करने से ज़्यादा आएगा पैसा, मम्मी वो कर लो, बैंक में जॉब कर लो, टीचर बन जाओ, ये बन जाओ, सबके अलग अलग ओपिनियंस थे। बट आपको क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है ना, आपके लिए करना क्या है वो इम्पोर्टेंट है ना। श्रीलू इनको थोड़ा सा था कि आंखों में बोलते ना चमक होता है, कुछ ज़्यादा पैसे कमाने जिंदगी में, मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये यहाँ पे सेमिनार के लिए आई थी आप लोग की तरह, ठीक है। सेमिनार में इनको समझ में आ गया कि मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ, बिकॉज हमें खुद को पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं। आपको कोई भी बहुत कुछ बोल सकता है पर आपको पता होता है। हाँ बस हो गया सर, लास्ट है। और ये उसके बाद से आता है आपको उनका जो जॉब लगता है, कतर एवियस कैबिन क्रू में जॉब लगा है। अर्निंग इज़ 1,35,000 और अच्छा पैसा कमा रही है। उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑफकोर्स यहाँ पे आपका जो ये अपना फ्राइडे जो है हमारा एडमिशन क्लोजिंग डे है। अभी आपके पास शायद 2 दिन बचा हुआ है, तो आप लोग को थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना होगा कि इस साल का एडमिशन अब क्लोज हो जाएगा, अब नेक्स्ट ईयर के आएगा। आपको नेक्स्ट ईयर जॉब करना है कि नेक्स्ट ईयर किसी का एग्जाम्पल सेट करके तब देखना है, ये आपके हाथ में है। रेस्ट आपको राहुल सर गाइड कर देंगे, मैं आपको गाइड करती हूँ प्रॉपर तरीके से जो भी आपके डाउट्स हैं। गॉट इट। बाकी आपको कोई भी इशू मतलब कोई भी लग रहा डाउट है क्या तो आप पूछ सकते हो मेरे से। मैडम वो 11 मंथ की फीस कितनी? वो आपको राहुल सर गाइड करेंगे, ठीक है। आ जाओ आप लोग।